एंड आफ्टर द इंटरव्यू अगर तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ ना कि मैं अपसाइड डाउन हो गया गई, तो फिर वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं. Very good afternoon, guys. Sir, So I get an idea whether you are a person with. actually, helping in further business, then what? Why? Yes, sure. You should. Sir, what have to mention in the monthly call? Working in the family का कुछ business होगा. But you are Contributing in family. You are helping. You are not paid. Then leave it. लिख दो. Contributing in father's business. हाँ. Sir, if someone has left their job, so they have to write student. Student, and suppose you are working, so student presently, comma, previously worked as so and so so and so. Okay. And monthly. मंथली इनकम तो है नहीं अब, Okay. तो चली गई ना. छोड़ने के बाद भी इनकम मिलती है. ऐसा कुछ है तो बताओ. ठीक है, ठीक है ना. Why you should write? Because you are giving a mental detail about yourself, which is helping him to process mentally or her to process mentally. अच्छा, पहले काम करती थी कॉग्निजेंट में, अब इसे छोड़ दिया. क्यों छोड़ा होगा? मे बी पर्पस इज बिगर. शी वॉन्ट्स टू he wants to explore. He left the job, right? तो अगर ये मुझे बाद में बताएगा कि मैंने ये करता था फिर मैंने छोड़ दिया, it will be a little shock for me. And if I know it beforehand, then I'll be curious to know. So again, आधार कार्ड वाला, keep me positively curious. ठीक है? Don't give a. Got it? हो गया. ठीक है? चले आगे. Sir, I have one more question. If somebody is overweight, like if they check the BMS, so they will judge them in negative way. No, not necessarily. And you will see कि overweight people भी बहुत recommend होते हैं. तो recommendation के बाद की कवायद शुरू हो जाती है कि अब तुम्हें इतने दिनों में weight कम करना है medical में. So being overweight is not that a negative a thing, but at the same time I would like to say that staying physically fit and staying sharp, staying physically sharp, mentally sharp is a blessing. एंड हमारी जो जद्दोजहद लाइफ की लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, वो यही चलनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को शेप में रखें, फिट रखें. पहले के जमाने के हीरो कैसे होते थे? मोटे मोटे, तोन निकली हुई है और वो हीरो बन के आते थे. बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. नो, लुक एट आवर स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स. आई डोंट कॉल देम स्टार्स. आवर एक्टर्स, दे आर ऑल फाइटिंग फॉर फिटनेस एंड इट्स अ गुड थिंग. वो अलग बात है कि वो गुटखा भी खा रहे हैं, वो अलग चीज है. No, that is negative. But this is very positive about them. You see, they are already 55, 57, but they are fighting it every day. और ये every day की fight है. Every day की fight है. Look at this Randeep Hooda and this guy Jamwal. वो extreme हो गया. फिर वो उतना जॉन इब्राहिम या अक्षय कुमार. तो पॉजिटिव फिटनेस चाहिए. वो विद्युत जमवाला, अगर वही काम करना है फिर ठीक है. समझ में आ रहा है ना. तो ये जद्दोजहद जो है, ये दिस इज द फाइट फॉर योरसेल्फ. योर स्ट्रगल इज नॉट टू लुक 28-20. योर स्ट्रगल इज टू लुक 28-40. Getting your point? Yes, sir. Your gift to yourself is look 28-40. This is the gift that you can give to yourself. There are people who are actually doing it. Shilpa Shetty, for that matter. Anil Kapoor, amazing guy. He is the role model here. He is 67, I think now. 67 यार. 67 में तो गाँव में लोग त्याग देते थे सब. अब हो गया. it's an art of makeup. Pardon? It's an art of makeup. No, don't do that. This is the problem which will happen with you. You means anyone. Moment you refuse to accept, the second step doesn't start. You guys had your lunch? Yes, sir. सेकेंड स्टेप ही तुमने बंद कर दिया ना, तो पहला स्टेप बंद कर दो तो दूसरा स्टेप शुरू. व्हाई यू कांट एक्सेप्ट हिम? Sir, dye वगैरह लगाते हैं. डाई इज ओके. वो दिखता है कैसा? Yes, sir. Liveliness है ये तो. एंड फिजिकल फिटनेस नहीं है. He also They burn themselves. Why? It doesn't come at free. All good things in life are costly, right? Yes. Look at the Hollywood stars. Yes. Look at them. Tom Cruise, for that matter. Jack. उसका एक वो बहुत अच्छा वायरल भी हुआ था. वो वायरल मतलब बहुत बातें हुई थी कि when he came in that movie, कौन सा था वो? टॉम
टॉप गन में आया था दैट ईयर, एंड आफ्टर 30 years टॉप गन मैवरिक, 30 years. So it is a gift to yourself. For that sacrifices are many. बहुत चीजें सेक्रीफाइस करती है लोग. सुबह उठते हैं, burn themselves, they eat very carefully, they're very cautious about their diet, about their drinks, about their whatever. So it takes a lot of efforts. For that, first thing which is required is positive energy. आप नहीं कर पाओगे बहुत सारी मेहनत, एक्सरसाइज, अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी अंदर से नहीं. समझ रहे मेरी बात? पॉजिटिव एनर्जी पहले अंदर से आएगी, तब आपको मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं मुझे करना है करना है करना है. अगर अंदर से बुझा हुआ होगा ना मन, छोड़ जाने दे यार, फिर अब क्या देखोगे, वो भी तो मोटी है ना थोड़ी, वो भी तो मोटी है ना. मैं कौन सी ज्यादा मोटी हूँ? मैं कौन सा ज्यादा मोटा? मैं थोड़ा हेल्दी हूँ. I'm chubby, I'm cute and chubby. हम खाते भी थे करके. फिर आप अपना जस्टिफिकेशन वहां ढूंढ लोगे. तो जस्टिफिकेशन ढूंढने के सारे आयाम मौजूद है. ठीक है, सब टू यू. आगे चलें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स. गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम लिखना है पहले. जैसे मान लो बास्केटबॉल है, पीरियड एंड ड्यूरेशन. पीरियड कब था? पीरियड विल बी इन ईयर्स यूजुअली. मान लो आप 8, 9, 10th में बास्केटबॉल खेलते थे, तो व्हाट वाज द पीरियड? आपका 8th and 9th 10th कब था? मान लो आपका 8, 9, 10 था, कब था तुम्हारा? अरे एक बोलो. 17 to 20. अब एक बता दो मुझे. 12 to 14. सो 2012 to 14. ड्यूरेशन कितना हो गया? 3 years. प्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर किया है. अब स्कूल में मान लो तुमने इंटर हाउस में खेला है, यस. इंटर स्कूल खेला है, वेरी गुड. इंटर क्लस्टर में खेला है, और वेरी वेरी गुड. डिस्ट्रिक्ट में खेला है, वेरी 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 गुड. स्टेट में खेला है, इंटर हाउस भी स्टेट में खेला है, नेशनल्स खेला है, उसी हिसाब से. सो इंटर कॉलेज, पहला क्या हो सकता है? इंटर हाउस टूर्नामेंट्स, राइट. देन इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, क्लस्टर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, राइट. यूनिवर्सिटी लेवल भी टूर्नामेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी, नेशनल्स. और उसके बाद बोलो मैं तो कौन सा चोपड़ा है वो? नीरज चोपड़ा. ओलंपिक्स. अगर एशियाड्स. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में रिप्रेजेंटेड स्कूल इज ऑल्सो एन अचीवमेंट. जस्ट एज द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इज एन अचीवमेंट. व्हाटएवर इज द अचीवमेंट, आपको मिलते हैं ना सर्टिफिकेट्स. रिमेंबर दैट व्हाटएवर यू राइट, यू हैव टू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इट. सर्टिफिकेट शुड बी देयर. झूठ मत लिखना. समझ में आया? जो भी तुमने थोड़ा बहुत किया है वो लिखो, बट देन इट शुड बी ट्रू. जैसे नॉर्मल खेलने वो लिख दो. फिर कैजुअल एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. बट अचीवमेंट लिखा है और बोले सर सर्टिफिकेट तो गुम हो गया, तो फिर हो सकता है गुम हुआ हो सकता है गुम ना हुआ हो, आपने गुम कर दिया हो. तो बट अगर आपने खेला है खाली, तो अदर्स, OTHER एंड nil, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट nil. यू नीड टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ एंड PIQ. झूठ बोल के ना बहुत बुरा फंसते हैं, तो कहीं पे भी आप झूठ मत बोलो. पहली तो एडवाइस मेरी यही है, ठीक है. हाँ सर, खेला है सर्टिफिकेट नहीं, तो फिर मतलब अचीवमेंट भी नहीं है ना. नहीं मतलब खेला जीता भी है, सर्टिफिकेट नहीं. क्या खेला है और क्या जीता है? 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता हूं सर, उसका सर्टिफिकेट मिला सर, गोल्ड मेडल मिला. हाँ तो लिख दो फिर, रिसीव्ड गोल्ड मेडल. अब मेडल तो लेके जाओगे नहीं, तो बोलना तब पूछेगा ना उसको. सर्टिफिकेट से मान लेगा क्या? सर्टिफिकेट तो बहुत छप सकता है, छपवाने वाले बहुत सर्टिफिकेट छपवा लेते हैं. वो आईओ ऐसे थोड़ा बैठा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन में समझ जाएगा कि तुम कितना अच्छा खेले हो. समझ रहे हो ना? तो सिमिलरली बास्केटबॉल के बाद हैंडबॉल के बाद खो-खो के बाद कबड्डी, whatever and whatever. Similar. Now, whatever you have played is sports for you. You may not have gone to nationals, doesn't matter. You might be just playing casually with your gully ke dost. That is also sports. My idea is to see whether you believe in sports, whether you have gone out, ventured, played with kids. जैसे गली में ऐसे खेलेंगे सर, वो मतलब कोई बिल्कुल स्पेशल स्पोर्ट होगा, वो तो नॉर्मल होगा. गली क्रिकेट बैडमिंटन है तो क्रिकेट ही. स्टेप से वो खो-खो. नहीं, स्टेपो में मत आओ. बट गली में खो खो खेला है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेली है, अपने रूल बना के 1 tip 1 hand out. है ना? खेला है ना? तो वहां लिख तो रहे तुम कैजुअल,
कैजुअली खेल है ना वो, तो कहाँ तुम लिख रहे हो कि वोंट नेशनल इन 1 एंड आउट, तुमने लिखा भी तो नहीं है ना। हाँ, अदर्स एंड नील। स्कूल में जो गेम पीरियड होता था वही अगर अचीवमेंट नहीं किया हो तो क्या है, अब स्कूल के यूनिफॉर्म में वो ब्लैक वाला शूज पहन के खेले हो तो कैजुअली खेलो हैं, खेले फुटबॉल हो बट पहने क्या थे, स्कूल वाला शूज, सबने वही किया। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट। तो खेलना जरूरी है, हर कोई थोड़े ना जाके नेशनल्स खेलेगा, गांव का बच्चा जाके नेशनल खेलेगा, नहीं मिलेगा मौका, मिलेगा तो खेलेगा, पता चले जीत भी जाएगा, बट मान लो उसको मौका ही नहीं मिला तो क्या करेगा, समझे। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, व्हाट इज अ हॉबी एंड इंटरेस्ट, स्पेयर टाइम इंटरेस्ट, कि खाली समय है तो उसमें मैं पेंट करूंगा, चाहे यू नो कुछ क्राफ्टिंग करूंगा, ऑल दोज थिंग्स। एंड हॉबीज क्या है, जैसे क्या पढ़े हॉबीज, बैठ जाओ, बाइसाइक्लिंग, साइक्लिंग इज अ गुड हॉबी। Some people have hobby is gardening, some people have hobby is cooking, है ना, है कि नहीं। Some people have hobby as mountaineering, trekking, cycling, that can be interest, sudoku, hobby stroke interest दोनों लिखा है ना, क्या लिखा है, hobbies and तो दोनों है। हाँ, they need to do Atmachintan. Where are they going? What's wrong with them? Not having a hobby is a serious problem. I'm very serious about it. Why you're not having a hobby? You means anyone is a problem. You should have a hobby. You're a human being. So how can you be not having a hobby? Right? Probably you don't know that you have a hobby. Again, you means so you have to do a little bit of introspection. Something you would definitely like to. Like reading is a hobby. Someone loves to read. Right? So do you read? Do you have a hobby? Got the point? Yes. How a man without a hobby, I don't think थोड़ा प्रॉब्लम है, या तो उसको समझ नहीं आ रहा सवाल, या उसको वो खुद ही समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी हम खुद को नहीं समझ पाते हैं ना, most of the time, right? Yes, sir. So what are your hobbies? My hobby is running, exercising, music, and writing. And writing. Favorite hobby. So cooking, dancing, and writing diary, and listening to music. Writing diary पे I'll have a word with you. So I love reading books, I love playing sports, I love singing music. Amazing. So reading, That's all. listening music, Do more to life. listening music, Journaling is a better word. So listening to music, singing, playing guitar, writing poetry. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर सबकी तो है हॉबीज। Reading books, listening to music and podcast, trekking and bike riding. Amazing. So workout, वर्कआउट एंड फिजिकल फिटनेस एंड म्यूजिक, बहुत अच्छा। आप अब बताओ। रीडिंग एंड म्यूजिक। So traveling, trekking, riding, driving. ड्राइविंग मतलब बाइक। Driving car. विल हैव अ डिस्कशन, इंटरव्यू करेंगे। So trekking, climbing, swimming. क्लाइंबिंग ट्रीज, रियली वेरी नाइस। तो तुम्हें टाइगर से डर नहीं लगेगा, टाइगर आते ही चढ़ जाओगे पेड़ पे, है ना। एक्सप्लोरिंग जंगल्स, दैट्स वेरी एडवेंचरस, वेरी नाइस, गुड। Reading newspaper and doing regularly. देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग इज स्लाइटली एकेडमिक इन नेचर। Reading is when you read fiction. So reading fiction is reading. That is the hobby of reading. When you read, but when you're reading newspaper, you're basically assimilating knowledge. So they're two different things. But ठीक है, if you have newspaper as a hobby, no, nothing wrong in it. Reading, music, cooking and bike riding. Very good. So cooking and थोड़ा बढ़ाओ दायरा, है ना। Solving Sudoku and reading articles on geopolitics. Very good. बहुत पूछेगा सवाल जियोपॉलिटिक्स पे। Which area of Ukraine has been taken over by Russia already? So 2014 में 2014 में नहीं लिया, अभी लिया है। कौन सा एरिया लिया है? 200 प्रांत उसका ले लिया ना, उसका नाम क्या है? हैं? देखो, ये क्या बोल रहा है? क्या बोला अभी? रीडिंग। इसीलिए हॉबी सोच समझ के लिखना। इंडिया इज बाइंग ऑयल थ्रू रशिया, राइट? व्हाट इज द रूट विच टैंकर्स फॉलो? through Pacific Ocean. हाउ, टेल मी। So the eastern part of the Russia. हाँ, And तो वहां से टैंकर कहाँ जाता है? through South China Sea Mhm. and the Malacca Strait Mhm. and the
वेरी गुड. Many people get confused. And what is the name of the port? जहाँ से आता है रशियन पोर्ट का नाम क्या है? How you said you read geopolitics? You should know the name of the port also. Vladivostok. तो हम तुमको याद दिलाएंगे वहां पे आके, समझा? तो इफ यू से समथिंग यू शुड नो इट. ठीक है, नहीं तो 2 सवाल में कॉन्फिडेंस डाउन, खत्म. फिर वहां पे जो डाउन हो गए ना, अब होगा ही नहीं इंटरव्यू तुम्हारा. सर कितना टाइम देना चाहिए हॉबी को prepare होने जितना टाइम अवेलेबल है. सर पर हम बहुत सारी हॉबी बना लेते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम तो देते होंगे ना. वीक में बना सकते हैं, 2 दिन ये करेंगे 2 दिन वो करेंगे. सारी हॉबी एक ही दिन में करना जरूरी नहीं है. सर तो ये हॉबी नहीं होगी क्या, इंटरेस्ट नहीं, suppose you have 2-3 hobbies. So today, suppose you have hobby of running. So today you went for running. Then you also have hobby of cycling. So next day you went for cycling. You also have hobby of swimming. So you went for swimming next day. You also have hobby of gardening. So Sunday you started doing gardening. Then what is the difference between hobbies and interest? Because Interest is spare time. Like 2 घंटे मेरे को शाम को रनिंग करना ही करना है. This is part of your schedule. इन स्पेयर किया, मैंने पढ़ लिया और अब मैंने सब सारे फतह कर लिए झंडे. अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है 4-5 घंटे. चलो मैं क्या करता हूँ, तो क्राफ्टिंग करने लगता हूँ, है ना? तो दैट इज हाउ इट इज. सर अगर ऐसी कोई ट्रैवलिंग का हो कि मैं महीने में एक बार कहीं जाना है, दैट इज योर इंटरेस्ट. somebody has interest of trekking. अब डेली थोड़ा ट्रैकिंग करेगा वो, कैसे करेगा डेली? बट ही हैज एन इंटरेस्ट इन इट and he will do it when he will get time. He may not get time for 6 months also, but there is a time when he'll get time, and once he gets time he'll pack his bags and he'll go. Getting the point? Getting the difference or not? yes, sir, I am doing shadow boxing Shadow boxing बहुत बढ़िया. और कुछ नहीं? and playing क्रिकेट, स्पोर्ट्स में चला गया. और कुछ? sport ज़्यादा. हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा है. रनिंग है अपने आप में अच्छी हॉबी है, रनिंग, मैराथन्स, Listening music and podcast. और कुछ और भी करना पड़ेगा, है ना? कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से. जब बोलना मत जबरदस्त, फिर पकड़े जाओगे. ट्रैकिंग बोल दे, बस बोल क्या बोलेगा? 2 सवाल पूछेगा ना, बस गया ट्रैकिंग. करो, पहले करोगे तो क्या सब पता रहेगा कि कौन सा गियर लगता है, कैसे करते हैं, कैसे चढ़ते हैं. वो तो 2-3 सवाल ही पूछेगा, उसको खुद नहीं पता होगा इतना, बट पूछेगा जरूर. अब तुम गए फ्लैट हो गए, समझ में आया ना? सो से व्हाट यू डू, डोंट ब्लफ. And do what you say, don't bluff. In one state, when you're bluffing, when you're saying what you're doing, you're bluffing, you're saying but you're not doing, you're bluffing to the interviewer. You're doing but you're not saying, you're bluffing to yourself. So either way, don't bluff, ठीक है? Working out, playing instrumental music, podcast and singing. Singing, very good. So riding bicycle. Riding? Cooking. Riding bicycle बोलने की जरूरत. Riding. So cooking, watching movies. Sorry, riding बोलो, cycling. Cycling. Yeah, good. So you got, everyone has some interest. Usually, only thing is we don't know. So please find. ठीक है. अब आ गया पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज. हॉबीज लिखने के बाद ऑब्लिक में इंटरेस्ट. अरे लिखते जाओ ना, ऑब्लिक 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 करते जाओ ना. ऐसे नहीं बनाना है कॉलम ए हॉबीज, कॉलम बी इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है. लिख दो, वो सब पता लगा लेगा तुम्हारा, चिंता मत करो, ठीक है? पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है? दीज आर द एक्टिविटीज दैट यू हैव डन बियॉन्ड एकेडमिक्स. बियॉन्ड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम से एक्स्ट्रा. उसमें क्या क्या होगा? डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, डांस कॉम्पिटिशंस, ड्रामा, ड्रामेटिक्स बोला मैंने, क्विज, परेड और पीटी और रिपब्लिक डे पे. हाँ हाँ बिल्कुल. Ramp walk, fashion shows, we can call it fashion show, yes. And so we have to mention ramp walk and modeling. fashion show, तो volunteer हो सकते हैं. yes. NSS volunteer, blood donation camp, Yes. जो भी तुमने किया है, organized blood donation camp, anchoring, anchor किया है, science exhibition, Fresher party. fresher party, Organizing donation. yes. This is beyond curriculum, but towards your course. Beyond curriculum, but towards your, ठीक है ना? पढ़ते पढ़ते ही तो किया ना ये, और उसी का पार्ट है, ये भी तो लर्निंग है ना. आप जब ऑर्गेनाइज करते हैं कई चीजें स्कूल में, कॉलेज में, बहुत सारी चीजें सीखते हैं. दैट इज व्हाई इट इज एक्स्ट्रा, क्यूरिकुलम के एक्स्ट्रा सिखा रहा है ये. समझ में आया? Sir, sir, but when we organize donation camp, we don't get any certificate. नो प्रॉब्लम. सर्टिफिकेट नहीं मिलना तब जरूरत है जब आप लिखो कि मैंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है. अगर नहीं किया है तो आपके बोलने से ही समझ में आ जाएगा, और उसके बाद 3 फॉलोअप होंगे, उसके बाद पक्का समझ में आ जाएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन.
समझ में आया ना? Yes, sir. So say only what you have done. Don't lie. So election में होते हैं हाउस का Hmm? सर मेरे स्कूल में सर ऐसे मतलब हाउस का टर्न आता था कि 5 इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल स्टेट हाँ हाँ बोलो बोलो. Recited international national news in school. Recite क्या? सर हर बच्चे का टर्न आता था हाँ ठीक है, किया है ना तुमने, किया. Now what is it saying? Position of responsibility, offices held in NCC and position of responsibility can also be class monitor, है ना? Position of responsibility can be squad. क्या होता है भाई एनसीसी वाला, बताओ जरा क्या क्या होता है? सीनियर अंडर ऑफिसर, हाँ, कैडेट अंडर ऑफिसर. समझ में आए? इसीलिए बोल रहा है एनसीसी का स्पेसिफिक बोल रहा है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ ट्रेन्ड गाय. यू सी ही हैज डन अ लीडरशिप रोल. He has done a leadership role there, right? Yes, sir. Scouting मतलब एनएसएस वगैरह में कई लोग होते हैं ना, स्काउट्स एंड गाइड्स में भी होते हैं. तो उसमें क्या किया है तुमने, समझ में आ गया? Yes, sir. Right? Absolutely. I don't think anyone can explain more detail than this. Yes, sir. Getting my point? Yes, sir. Now the problem is you have to now introspect. I can't get into you and say कि नहीं ये भी तेरी हॉबी लिख, खुद से ढूंढो. समझ में आया? Yes, sir. कुछ ऐसी हॉबीज भी होंगी जो आपके अंदर हैं पर आपने एक्सप्लोर नहीं की है. तो अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार एक्सप्लोर कर लो. What you do for 3 weeks becomes your habit. Getting my point? Yes, sir. What you do for 3 months becomes your part of living routine. So in case you have not been running, start running and it will become part of your routine in 3 months. It is never too late. Getting my point? Yes, sir. है ना? Yes. नेचर ऑफ, अच्छा, उसके बाद एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप्स एंड अदर फील्ड्स, ये दोनों एक ही है. ठीक है? पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर्स हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर, लाइक यू आर चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ सो एंड सो इवेंट, राइट? और एंकर ऑफ सो एंड सो इवेंट, मास्टर ऑफ सेरेमनी ऑफ सो एंड सो इवेंट. कई छोटे छोटे कितने सारे आपने काम किए होंगे. समझ में आया? समझ में आया? Volunteer. वॉलंटियर, यस. ए वॉलंटियर एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो, सर जैसे क्लास को संभालना. वो एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो. सर लोकल. इट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वॉलंटियर तो ऑपोजिट नहीं हो गया पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के. पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. वॉलंटियर मैंने स्वेच्छा से किया है ना? सर लोकल फुटबॉल क्लब क्यों बचाते हैं? बिल्कुल 100%. टीम कैप्टन ऑफ फुटबॉल क्लब सो एंड सो. आगे क्या है, कौन सी जगह से हो? सर सरपोजा टाउन एक गांव है. हाँ, सो एंड सो क्लब सरपोतरा टाउन. इट्स अ बिग थिंग. नहीं तो तुम क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके खेलेगा तो लिखेगा, जाए वही ना करेगा. हाँ, सर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि बच्चों को संभालना. you got the point now. Don't drag it. Nature of commission, permanent, short service. Very simple. Choice of service, you're going for army तो army, going for air force तो air force. इस SSB में air force में गए थे, अगले SSB में army गए, तो इधर army हो गया. हो सकता हमें तो भैया armed forces में जाना. सर ये बोल कुछ फर्क नहीं. सर्टिफिकेट नहीं बता हुआ मुझे तो आम वो पूछेगा अगर कि why you want to join army, तो of course आपके दिल में जो है वही बोलना चाहिए. आपके दिल में अगर ये है कि मेरे को आर्मी में जाना है, ऐसा नहीं है. मेरे को तो आर्म फोर्स में जाना है, मुझे आर्मी भी अच्छी लगती है, नेवी भी अच्छी लगती है, एयरफोर्स भी अच्छा लगता है, कोस्ट गार्ड भी अच्छा लगता है, तो बोलो, क्योंकि ये सच है. समझ में आया? बट मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, they say I want to go to army only, and they are very true about it, so nothing wrong, है ना? Yes, sir. So whatever is true is true. You should have the power of conviction and clarity on the subject. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Choice of service हो गया. Number of chances availed for commission in all 3 services. इसमें ना सारे chances लिखने चाहिए. Suppose आपने 9 times दिए हैं और उसमें से 3 बार आप screen out हो गए हो, तो 9 within bracket 3 screen out, 6 conference out. ठीक है? Yes, sir. Don't write only 6 conference out. 6. It is 9. 9 times you went, 3 times you got screened out, but still you went. No, it shows your perseverance कि आप इतनी बार गए हो, है कि नहीं? Now details of previous interviews. अब जो कॉन्फ्रेंस वाले हैं वो मान लो आपने 3 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए, तो सिर्फ वही डिटेल चाहिए. स्क्रीन आउट वाले डिटेल, that is not SSB interview. That is just a preliminary thing which is no relevance on your SSB. So whatever serial number, type of entry, SSB number in place, you should remember. हर बार जब जाते हो तो लिख लिया करो. Play date, chest number, cash number. Why it is relevant? Yes. It is very relevant. समझ में आया? Yes, sir. I think that's all. Now, any doubts, anyone? Sir, does it somehow affect your
You did something but nothing happened. देखो, finally there was only one switch. Finally there was only there is only one small problem. There is only one small problem holding you back. There is no major problem which is holding you back. एक ही कोई स्विच है जो दबी हुई. प्रॉब्लम, हमारा रोल क्या है? एज एन असेसर, एज ए टीचर, माई रोल इज टू टेल यू कि ये स्विच दबी हुई है, उसको चालू करो. चालू करने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है बताना. तो मैं इंटरव्यू के बाद तुम सबको बता दूंगा कि तुम्हारा ये 3-4 स्विच तुम्हारे बंद है, पर ऑन करने का काम तुम्हारा है. समझ में आया? Yes, sir. What the point? Now, any queries, any doubts? None? So does it somehow affect the IO's perception of the personality if you're not living up to the I don't think so. Ideally, IOs have been trained to go with a very open mind and accept all. Ideally, the selection system is designed to recommend. It is service selection board. It is not service rejection board. So it is meant for selection. So my ideal perception about you is, I want to recommend you, provided you let me recommend you. If you don't let me recommend you, how can I? तो अगर आप ही जो हैं वो उसमें रायता फैलाए जाएंगे, मैं कैसे करूंगा? I am there to, so I am there, assessor is there with a very open mind कि convince me. That's why an ideal interview में interviewer will ask very few questions, बहुत थोड़ा छोटा. What is his attempt? तुम बोलो. तो DIPR का रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो इट इज अबाउट 1585 और 1090. तो 10% इंटरव्यूअर बोलता है, 90% इंटरव्यूअर को बोलना है. समझ में आया? तुम लोग इसीलिए कई वीडियोस देखोगे यूट्यूब में ना, वो मॉक इंटरव्यूज वाले, वो इंटरव्यूअर ही बोले जा रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा. बिकॉज इंटरव्यू जब बोलता जाएगा आई डिड दिस देन आई डिड दैट, सर फिर ये हो गया. अब अपनी आवाज सुने जा रहा है और बोले जा रहा है और सुने जा रहा है. तो देन ही गोज इनटू हिज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल कैथारसिस. तब जाएगा वो, तब अंदर की बातें बाहर आएंगी. अगर मैं उसको ब्रेक ही करता रहूंगा ना, मैसेज पे चढ़ा रहूंगा, अच्छा फिर तो he will never go to his unconscious mind. He will stay in his conscious mind and he will also reply, हाँ फिर मैंने ये किया, हाँ फिर. That is not what the interview is. This interview is, that's why totally different from all interviews. This interview is psychological, right? Yes, sir. And after the interview, अगर तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ ना कि मैं अपसाइड डाउन हो गया गई, तो फिर वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं. ठीक है? Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. चलो, that's all.